Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Today I'm going to cover another very important topic of linguistics, that is morphology. Phonology और morphology दोनों बहुत important है और अक्सर पेपर में आ जाते हैं. Let's move on towards its definition. Morphology. Morph जो word है वो morphous से निकला है, that is a Greek word. What is morphology? Morphology is a field of linguistics focused on the study of the forms and formation of words in a language. Morphology एक field है linguistics की जो कि study करती है words की forms को और उसकी formation को एक language में कि किस तरह से एक word बनता है, उसकी formation कैसे होती है. Word in a language consists of one element or elements of meaning which are called morphemes. एक language में जो elements होते हैं जिनका कोई मतलब होता है उनको morphemes कहा जाता है. Now let's define morpheme. What is a morpheme? The smallest unit of meaning or grammatical function. जो सबसे छोटा unit होता है meaning का या grammatical function भी कह सकते हैं, उसको morpheme कहते हैं. A single word may be composed of one or two morphemes. एक single word जो है वो एक या दो morphemes से बना होता है. For example, she looked unhappier than the day before. तो यहाँ पे unhappier को आप देख सकते हैं that this word can be analyzed into three morphemes. Un plus happy plus So you can see कि यहाँ पे तीन morphemes हैं और इन तीनों morphemes का separate meaning है. Morphemes can be divided into two types, free morphemes and bound morphemes. Free morphemes जो हैं वो basic word forms हैं and bound morphemes जो हैं that are prefixes and suffixes. ये आपने पढ़े होंगे I guess 9th 10th में भी और A levels में भी. Free morphemes which can be used as a word on their own. They generally consist of separate English word forms such as nouns, verbs and adjectives. For example, girl, happy, system, act, plane, etc. ये तमाम examples हैं free morphemes की. ये ऐसे words हैं जो जिनका अपना एक separate individual meaning होता है और ये nouns, verbs और adjectives की form में होते हैं. Next is bound morphemes which cannot occur on their own as an independent word. जो independent word की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकते वो bound morphemes हैं. They are generally prefixes and suffixes like re, ist, and s in the words जैसे कि reprint, typist, talked and boys. For example, and are attached to other forms which are described as stems basic word forms. जी ये वो words हैं जो कि दूसरे word से attach होके अपना कोई meaning देते हैं. For example, unhappier. अब unhappy में un is prefix, happy is stem and is suffix. So this is bound, free, bound. Prefix जो है वो bound है. Happy is a free morpheme. Happy का अपना चूँकि एक मतलब होता है and is again bound morpheme. Next is another example, carelessness. Show the free and bound morphemes in the words below. Which one or ones have bound morphemes? जी नीचे examples दी गई हैं और इसमें आपने बताना है कि इसमें से bound और free morphemes कौन से हैं. Desire, shortened, bottle, previewer. तो इसमें आप देख सकते हैं desire is free, shortened is another like bound morpheme, bottle is free. अगेन प्रीव्यूअर जो है वो प्री से ही आपको ज़ाहिर है हो रहा है कि ये बाउंड मॉर्फीम है. नोट बी केयरफुल अबाउट दीज वर्ड्स. रिसीव. अब रिसीव में दिस इज़ नॉट कि इसमें कोई प्रीफिक्स लग रहा है. रिसीव का अपना एक मीनिंग होता है. रिड्यूस, रिपीट. सो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अपने मीनिंग्स होते हैं. ये नहीं समझना चाहिए कि ये बाउंड मॉर्फीम्स हैं. इनफैक्ट दीज आर फ्री मॉर्फीम्स एज दे हैव इंडिविजुअल मीनिंग्स. फ्री मॉर्फीम्स की भी दो टाइप्स हैं, लेक्सिकल मॉर्फीम्स एंड फंक्शनल मॉर्फीम्स. Lexical morphemes, lexical content words
Set of ordinary nouns, verbs and adjectives that carry the content of messages we convey. यानी एक आम सेट कह सकते हैं नाउन्स का, वर्ब्स का और एडजेक्टिव्स का जो कैरी करते हों मैसेजेस को जो हम कन्वे करते हैं. Since we can add new lexical morphemes to the language, we call these morphemes open class words. Some examples are nice, walk, house, book. जी, ये लेक्सिकल से मुराद ये है कि वो वर्ड्स जो कि एक लैंग्वेज की डिक्शन में शामिल होते हैं या उसकी वोकैबुलरी में मौजूद होते हैं. फंक्शनल मॉर्फीम्स, ग्रामेटिकल वर्ड्स भी कहा जाता है इनको. द क्लास ऑफ वर्ड्स विच कंसिस्ट लार्जली ऑफ फंक्शनल वर्ड्स इन अ लैंग्वेज. एक ऐसी वर्ड्स की क्लास जिसमें ज़्यादातर फंक्शनल वर्ड्स शामिल हों जो कि एक लैंग्वेज में होते हैं. वी ऑल्सो कॉल दैम क्लोज्ड क्लास वर्ड्स. जिसमें मज़ीद कोई वर्ड्स शामिल नहीं होते या हो सकते, उनको क्लोज्ड क्लास वर्ड्स कहा जाता है. बिकॉज वी कैन नॉट ऐड न्यू लेक्सिकल मॉर्फीम्स टू अ लैंग्वेज. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें मज़ीद वर्ड्स नहीं शामिल किए जा सकते. डिटर्मिनर्स, द ए एंड एन, ऑक्सिलरी, कैन, कुड, कनेक्टर्स एंड और प्रोनाउंस, आई, मी, ही, ये सब आप देख सकते हैं कि ये ग्रामेटिकल फंक्शनल वर्ड्स हैं. जैसे प्रपोजिशंस, इन, ऑफ, इंटेंसिफायर, वेरी, टू. फॉर एग्जांपल, व्हेन ही अराइव्ड द ओल्ड मैन हैड एन अम्ब्रेला एंड अ लार्ज प्लास्टिक बैग फुल ऑफ बुक्स. जी, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं उनमें आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते या उनको मज़ीद ऐड नहीं कर सकते किसी भी लैंग्वेज की वोकैबुलरी में. नेक्स्ट इज़ बाउंड मॉर्फीम्स. और बाउंड मॉर्फीम्स की दो टाइप्स हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स. ये मॉर्फीम्स के मुतालिक जो भी क्वेश्चन आएगा मॉर्फोलॉजी के बारे में, आपने ये सब कुछ इसमें लिखना है. मॉर्फ के बारे में, मॉर्फीम्स के बारे में, एलोमॉर्फ के बारे में. हो सकता है तो एक डायग्राम भी ज़रूर बनाइएगा जिसमें ये तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया हो और इसमें दिखाया जा रहा हो कि व्हाट इज़ मॉर्फ, एलोमॉर्फ, ये आगे मैं आपको बताऊँगी. Derivational morphemes. These bound morphemes are used to produce new lexical words from the existing ones. यानी नए words produce किए जाते हैं इन bound morphemes से. And they can be both prefixes and suffixes. वो ये prefixes भी हो सकते हैं, suffixes भी हो सकते हैं. There is the change of meaning because there is a change of lexical category. यानी change of meaning आता है क्योंकि lexical category में change आता है. For example, नाउन टू एडजेक्टिव, केयरफुल. केयर अब नाउन है और इसका सफिक्स जो आगे लगा हुआ है फुल है. तो केयर के साथ जब भी फुल लगेगा, सफिक्स अटैच होगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, सिंगर, एग्जैक्टली, मॉरलाइज. नोट, इन सम केसेस देयर इज़ नो चेंज ऑफ कैटेगरी बट देयर इज़ स्टिल द चेंज ऑफ मीनिंग. यानी कैटेगरी नहीं चेंज होती लेकिन उसका मीनिंग बदल जाता है. फॉर एग्जांपल, रीप्रिंट. रीप्रिंट इज़ अ वर्ब. री जो है उसमें आप देख सकते हैं वो दैट इज़ प्रीफिक्स और प्रिंट जो है वो वर्ब है. सम अदर्स आर फ्रेंड्स, हैप्पियर, मिसलेड. ये तमाम एग्जांपल्स इसमें आ जाती हैं. इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स के बारे में पढ़ेंगे. यूज टू सिग्नल ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड नॉट टू प्रोड्यूस न्यू वर्ड्स इन अ लैंग्वेज. ये ग्रामेटिकल फंक्शन को सिग्नल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इससे नए वर्ड्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं एक लैंग्वेज में. दे आर ओनली फाउंड इन सफिक्सेस. सफिक्सेस में होते हैं ये. एंड देयर इज़ नो चेंज ऑफ मीनिंग. कोई मीनिंग में चेंज नहीं आता और लेक्सिकल कैटेगरी या लेक्सिकल कैटेगरी में भी कोई चेंज नहीं आता. दीज मॉर्फीम्स ऑलवेज कम आफ्टर द डेरिवेशनल मॉर्फीम्स. डेरिवेशनल मॉर्फीम्स के बाद ही ये मॉर्फीम्स आते हैं. जैसे कि एस थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी वेट्स एट होम. एट पास्ट टेंस, शी वेटेड एट होम. ing ing progressive, she is eating the donuts. Next is n, that is past. Mary has eaten the donut. तो ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स की, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये सफिक्सेस के तौर पे ही इस्तेमाल हो सकते हैं. एस प्लूरल, शी एट द डोनट्स. एस पोजेसिव, Lisa's hair is short.
or complex. Lisa has shorter hair than Karen. Est super. Lisa has the shortest hair. Find the inflectional and derivational morphemes in the sentences below. जी कौन से इनफ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फीम्स होंगे वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा. आपको इनफ्लेक्शनल का तो पता है कि दोज आर सफिक्सेस. स्लोली ही एम्बेल्ड डाउन द स्ट्रीट. आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द फायर. दैट इज़ द बिगेस्ट फिश आई हैव एवर सीन. अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्बेल्ड है उसमें वो इनफ्लेक्शनल है. यहाँ पे आप चार्ट आ गया है. चार्ट को आप देखिए. मॉर्फीम जिसकी डिवीज़न हो रही है फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम. फ्री मॉर्फीम की फर्दर सब डिवीज़न हो रही है लेक्सिकल मॉर्फीम एंड फंक्शनल मॉर्फीम, दैट इज़ ग्रामेटिकल मॉर्फीम. बाउंड मॉर्फीम जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ डेरिवेशनल मॉर्फीम एंड इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम, जिनको मैंने अभी आपको डिफ़ाइन किया है एग्जांपल्स के साथ. नेक्स्ट हम डिफरेंसेस देखेंगे डेरिवेशनल और इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स के दरमियान. डेरिवेशनल मॉर्फीम्स ड्राइव अ न्यू वर्ड बाय बीइंग अटैच्ड टू रूट मॉर्फीम्स और स्टेम्स. जी एक नया वर्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है डेरिवेशनल मॉर्फीम्स से. इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स गिव ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन सच एज नंबर, प्लूरल, टेंस, पोजीशन, सो ऑन, जैसे कि ग्रामेटिकल फंक्शन. They can be both suffixes and prefixes in English. Examples: beautiful, exactly, unhappy, impossible, recover. ये तमाम examples हैं derivational morphemes की. ये suffixes भी हो सकते हैं, prefixes भी. Inflectional morphemes they are only found in suffixes in English. Examples: boys, marries, walked. ये examples हैं और ये सिर्फ suffix हो सकते हैं. Change of meaning. Example: undo, the opposite of the word do. ठीक है, इसमें चेंज ऑफ मीनिंग आ जाता है. नो चेंज ऑफ मीनिंग. एग्जाम्पल्स: वॉक वर्सेस वॉक्स, टॉय वर्सेस टॉयज़. अब इसमें मीनिंग कोई चेंज नहीं हुआ. द फोर्थ थिंग इज़ चेंज ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल टीचर, वर्ब प्लस सफिक्स इज इक्वल टू नाउन. नेवर चेंज ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ड्स. इसमें ग्रामेटिकल कैटेगरी जो है वो चेंज नहीं होती वर्ड्स की. जैसे ओल्ड प्लस अर इज़ ओल्डर, दैट इज़ एडजेक्टिव प्लस सफिक्स इज़ एडजेक्टिव. द सेकंड थिंग इज़ नो चेंज ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरी. फॉर एग्जांपल फ्रेंड प्लस शिप इज़ फ्रेंडशिप, नाउन प्लस सफिक्स दैट इज़ इक्वल टू नाउन. तो ये हमने देख लिए हैं डिफरेंसेस दोनों में, डेरिवेशनल एंड इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स. नाउ कम्स मॉर्फ्स एंड एलोमॉर्फ्स, जिसका मैंने आपके पहले जिक्र किया था. मॉर्फीम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन. सबसे छोटा यूनिट मीनिंग का या ग्रामेटिकल फंक्शन कह सकते हैं इसको, जैसे कि अनहैप्पी ईयर. अब इसमें 3 मॉर्फीम्स हैं. मॉर्फ, an actual form used as part of a word representing one version of a morpheme. Unhappier. इसमें जो एक सिंगल पार्ट है उसको हम कह सकते हैं कि मॉर्फ है. और मॉर्फ जो है वो मॉर्फस से निकला हुआ वर्ड है. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ स्टार्ट में. दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स शेपिंग, किसी चीज़ को शेप देना. और यहाँ पे भी इसका यही मतलब दिया जा रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है मॉर्फीम की एक वर्जन को. ज़रा डिटेल में इसके बारे में बताऊँगी. इन लिंग्विस्टिक्स, अ मॉर्फ इज़ अ वर्ड सेगमेंट दैट रिप्रेजेंट्स वन मॉर्फीम. ये एक वर्ड सेगमेंट होता है जो एक मॉर्फीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज़ मीनिंग. जो सबसे छोटा यूनिट है लैंग्वेज का जिसका कोई मतलब है. इन साउंड और राइटिंग, आवाज़ में या लिखाई में. इट इज़ a written or pronounced portion of a word such as an affix or prefix or suffix. For example, the word infamous is made up of 3 morphs.
इनफेमस जो है वो 3 मॉर्फ से बना हुआ है, इन, फेम, यस, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट्स 1 मॉर्फीम। हर कोई एक मॉर्फीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। द वर्ड हैज़ 2 एफिक्सेस, इस वर्ड में 2 एफिक्सेस हैं और प्रीफिक्स हैं इन और एक सफिक्स है जो कि अटैच हुआ है इन फेमस के साथ। इन फोनोलॉजी एन एलोमॉर्फ इज़ अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ मॉर्फीम। जी, एलोमॉर्फ जो है वो वेरिएंट फॉर्म है मॉर्फीम की। अ मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको पहले। फॉर एग्जांपल द प्लूरल इन इंग्लिश हैज़ 3 डिफरेंट मॉर्फ्स। जो इंग्लिश में प्लूरल होता है उसके 3 डिफरेंट मॉर्फ्स होते हैं, मेकिंग प्लूरल एन एलोमॉर्फ बिकॉज देर आर ऑल्टरनेटिव्स। क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं तो प्लूरल जो है वो एलोमॉर्फ कहलाता है। नॉट ऑल प्लूरल्स आर फॉर्म्ड इन द सेम वे, they are made in English with 3 different morphs, s, z and as in kicks, cats and sizes। जी, ये 3 तरीके हैं जिससे प्लूरल बनता है और ये जो प्लूरल्स हैं ये एलोमॉर्फ कहलाते हैं। दैट इज़ अ वेरिएशन इन मॉर्फीम। एलोमॉर्फ वन ऑफ क्लोजली रिलेटेड सेट ऑफ मॉर्फ्स, जैसे कि कैट में प्लूरल ऐड कर दें कैट्स, बसेस, बेबीज़, शीप। शीप हैज़ नो प्लूरल क्योंकि शीप का प्लूरल भी शीप होता है। मैन जिसका चेंज ऑफ वावल होए तो वो प्लूरल बन जाता है, मैन का मैन। सो दीज आर ऑल एलोमॉर्फ्स। जो भी चीज़ ऐड हो रही है ये प्लूरल्स ही एलोमॉर्फ कहलाते हैं, जो कि वेरिएशन है मॉर्फीम की। इन एडिशन टू एस and IES, another allomorph plural in English seems to be a zeromorph. Zeromorph भी है एक चीज़ इंग्लिश में, because the plural form of sheep is actually sheep plus 0 is equal to sheep. तो इसको zeromorph कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई प्लूरल ऐड नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको zeromorph कहते हैं। When we look at man plus plural, we have a vowel change in the word, यानी A से E में चेंज हो रहा है। मैन जो है वो मैन बन जाता है as the morph that produces so-called irregular plural for men। तो ये irregular plural है मैन के लिए, तो इसको भी हम ज़ीरोमॉर्फ ही कहते हैं बिकॉज इसमें उस तरह का चेंज नहीं हो रहा जैसे प्लूरल नॉर्मली ऐड होता है एस या ई एस या आई ई एस। So students, I hope you have understood the concept of morphology that I explained in detail। और इंशाल्लाह आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पेपर्स देंगे। वैसे टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है तो कोशिश कीजिए कि आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और ये मेरे लेक्चर्स ज़रूर सुनिए। मैंने फोनोलॉजी पे एक डिटेल वीडियो अपलोड की थी रिसेंटली, सो आप वो भी सुनिए और इंशाल्लाह फोनेटिक्स पे मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और आई होप वो भी आपको हेल्पफुल प्रूफ होगी। Till then students, this is your host Samia Omar signing off from M English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.